Next stanza 3 ହେଲା the waves beside the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be jay in such a jocund company. A guest and guest, but little thought what wealth the show to me had brought. Okay. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be jay in such a jocund company. I guessed and guessed, but little thought what wealth the show to me had brought. In this stanza, तार difficult word meaning है outdid means surpassed माने अतिक्रम करिबा, sparkling माने शाइनिंग दृश्य, उज्जवल ग्ली मीन्स मार्थ हैप्पी आनंद, जय मीन्स केयर फ्री अजतनस, जकंड मीन्स जयफुल, गेस्ट एंड गेस्ट मीन्स आखि लाखि रहिबा, तेणु लिटिल थट मीन्स नो थट किछि भावना न रहिबा. इन दिस स्टैंजा द पोएट describes that the waves besides the flowers are dancing, but their mirth of daffodils is far greater than that of the waves. The entire atmosphere is one of joy, and this delight sinks deep into the poet's heart. His eyes are fixed on the spectacular sight. The poet fails to realize that the beautiful scene is going to be a source of joy for him in the future also. In short, the show of the flowers brings great wealth to the poet because the poet's imagination changes them again and again into something precious and permanently lovable. That means फूल गुड़िक भली लहरीमाला नृत्य करुचंती, मात्र डैफोडिल प्रफुल्लता लहरीमालार प्रफुल्लता ठारू ढेर बेसी. समग्र परिवेश आनंदप्रद रही, आनंद रे भरी रही एवं सही आनंद कविंक हृदय कंदर को विगलित करिछि, कविंकर हृदय को विगलित करिछि. से चमत्कार दृश्य उपरे कविंकर आखि गुड़िक लाखि रही. से दृश्य रे निजको हजई देइचंती. से मनोलोभा दृश्य जे भविष्यत रे केबे तांका पे आनंदर उत्स हेबाको जाउची बोली कवि अनुभव करि पारि नांती. तेणु संक्षेप रे कहिले फूलगुड़िकर दृश्य कविंक पई संपद आनी देछि, कारण कविंक चिंताधारा सेगुड़िकु बेलुक बेल किछि महार्ग और परम आनंद कारी वस्तु रे रूपांतरित करिबारे लागिछि. तेणु विभिन्न समय रे कविंकर मन को एई दृश्य गुड़िक अति विमोहित करि रहिछि. एई दृश्य गुड़िक प्रकृतिर सौंदर्यमय दृश्य रे भरपूर होई रहितिबा डैफोडिल्स गुड़िक कविंकर मन को जिणी नैछि बोली एठारे वर्णना करा जाइछि. तेणु इन दिस स्टैंजा the short summary of this stanza, the waves besides the flowers are dancing, but the mirth of daffodils is far greater than that of the waves. The entire atmosphere is one of joy, and this delight sinks deep into the poet's heart. So we have confirmed that कविंकर आखि गुड़िक ए सौंदर्यमय दृश्य रे अति लाखि रही, जहाँफल कवि निजकू ए दृश्य गुड़िक सहित एभली भाव में जड़ित रखिदेइचंती जे निज कथा को मध्य से भूली जाइचंती. तेणु हिज आईज आर फिक्स्ड ऑन द स्पेक्टाकुलर साइट. द पोएट फेल्ट टू रियलाइज दैट द ब्यूटीफुल सीन इज गोइंग टू बी ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर हिम in the future also. So we can write the short summary of this stanza. So summary of stanza 3: the waves besides the flowers are dancing,
but the mirth of daffodils is far greater than greater than that of the waves. The entire atmosphere is one of joy, and this delight sinks deep into the poet's heart. Okay, next stanza आलोचना करिवा. Stanza 4 ହେଲା जे for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. In vacant or in pensive mood, they flash upon that in which is the bliss of solitude. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Okay? In this stanza, यही कवितांश रे कवि हमकु कवि हमकु सुंदर डैफोडिल्स गुड़िकर दृश्य कवि को प्रदान करिथिबा आनंद रूपक संपद विषय रे वर्णना करिछि. सुनेली डैफोडिल गुड़िकर दृश्य अतीत पालटि जाइछि, ताकि समय गड़ी चलीछि. परवर्ती काल रे कवि जेतेबेले दुखद मनरे खटियारे गड़ी पड़िचंती, सोई जाइचंती, सेतेबेले सतेज डैफोडिल्स गुड़िकर मनलोभा दृश्य तांका कल्प दृष्टि रे भासी जाइछि ओ तांकर सारा शरीर भरी देछि आनंदर सिहरण. एहीपरि से सुंदर दृश्य केवल तात्क्षणिक आनंदर उत्स नुहे, बरं परमानंदर उत्स भाव प्रमाणित होइछि. एही अनुभव कविंकर दृष्टिभंगी और आध्यात्मिक जीवन शैली उपरे गभीर प्रभाव पकाइछि. So we have discussed that in this stanza the wealth of delight the show has bestowed on the poet. The sight of the golden daffodils becomes a thing of the past. Time flies by in letters years when he lies on his couch in a thoughtful mood. The lovely picture of the sprightly daffodils flashes upon his imagination and fills his entire being with joy. Thus, the love. Start. So, in this stanza, the wealth of delight the show has bestowed on the poet. The sight of golden daffodils becomes a thing of the past times flies by. So, ए कवितांश रे कविंकर अतीत कवि को अतीत को नहीं जाइछि, अतीत कथा तांकर मने पड़ी जाइछि. तेणु से एहीपरि सुंदर दृश्य केवल तात्क्षणिक आनंदर उत्स नुहे बोली से भाविचंती, बरं परमानंदर उत्स भावे तांको प्रमाणित करि दैछि. एही अनुभव कविंकर दृष्टिभंगी और आध्यात्मिक जीवन शैली उपरे कविंकर गभीर प्रभाव पकाई पारिछि. तेणु एही स्टांजा रे आमे कविंकर अतीत को एही डैफोडिल्स सौंदर्य दृश्य गुड़िक नहीं जाइछि और तांकर सारा शरीर रे एही चरण भरी देछि, जहाँकि आनंद रे कविंकर अतीतर दृश्य मान निज भावना मध्य को प्रभावित करिछि. ओके, तेणु यार परवर्ती क्लास रे आमे क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करिवा. जो माने नुआ करी मो चैनल को देखुचंती, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करबा को भूलिबे नाही. सब्सक्राइब कले मोर नुआ नुआ वीडियो गुड़िक देखिबार सुযোগ पाइबे. जो मानकर जेउटी डाउट रहला मते कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबे. ओके, बाय.